ہوا اور ایک دن خدیجہ کا غلام میسر آیا کہ محمد میری مالکہ چاہتی ہے کہ تم سے شادی کرے. کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب تک میں اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں ہاں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے کوئی کام اپنے چچا کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. آئے چچا کی خدمت میں، کہنے لگے چچا میسرہ یہ پیغام لے کے آیا تھا، میسرہ یہ پیغام لے کے آیا تھا. کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہا چچا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں آپ کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا، میں آپ کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا. کہا بیٹے خواہش تو میری بھی تھی. دیکھو کیا خواہشیں ٹکرائی ہیں. خدیجہ کی مرضی ہے، رسول کی مرضی ہے. چچا کہہ رہا ہے خواہش تو میری بھی تھی لیکن غربت کی وجہ سے خاموش ہو گیا. لیکن بھتیجے اگر تو ہاں کر دے تو ساری شادی کا بندوبست میری ذمہ داری ہے. ساری شادی کا بندوبست میں سنے جاؤ. آج چاہ رہا ہوں کہ سیرت رسول کے کچھ تھوڑے سے رخ سامنے آ جائے اور میرا محمد سمجھ میں آ جائے. بیٹے تم ہاں کر دو ہاں خدیجہ سے شادی کو. بندوبست شادی کا میں کروں گا. کہتے ہیں کہ ابو طالب تو فقیر تھے. بھائی ایسے ہی فقیر تھے کہ محمد کی شادی کے بعد 3 دن اپنی جیب سے محمد کا ولیمہ کیا. ایسے ہی فقیر تھے کہ متواتر 3 دن تک 3 وقت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی شادی کا ولیمہ کیا. تو فقیر اس سے پہلے نہیں تھے، تمہارے رسول پر خرچ کر کے فقیر بنے. پہنچائیے. اب دیکھو میرے محمد کی شان دیکھو. شادی طے ہوئی. میں جاؤں گا آگے، مجھے بہت دور جانا ہے، لیکن محمد کی زندگی کی کچھ جھلکیاں دکھلا کر آگے جانا چاہ رہا ہوں. میرے محمد کی شان دیکھو، نہیں خدیجہ کی شان دیکھو. ازواج مطہرات کی تعداد پوری زندگی میں رسول کے 28، اختلاف کے ساتھ 21، ایک وقت میں 9 یا 12. ٹھیک، ایک وقت میں یا 9 رہی ازواج مطہرات یا 12 رہی. ساری ازواج پوری زندگی کی یا 21 یا 28. ٹھیک ہے نا، 21 کو مان لو. تو خدیجہ کو چھوڑ کر 20. بھائی رکے رہنا. اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیوی اگر شریک زندگی ہو تو فضیلت نہیں ہے، اگر شریک مقصد ہو تو فضیلت ہے. بیوی شریک زندگی ہو تو کوئی کمال نہیں ہے. ہر شوہر کی بیوی شریک زندگی ہوتی ہے. بیوی اگر شریک مقصد ہو جائے، اب میں پچھلی تقریروں سے جوڑ رہا ہوں، بیوی اگر شریک مقصد ہو جائے تو صاحب فضیلت ہے. وہ جو 20 ازواج مطہرات تھی انہیں بیت المال سے ملتا رہا اسلام کے، تو ان ازواج کو اسلام نے پالا اور اسلام کو خدیجہ نے پالا. ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ درکار ہے. تو 21 تھیں جن میں ایک خدیجہ. جاؤ جتنی تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کو کھنگال ڈالو. 21 شادیاں کرنے والا رسول دولہا بن کے اگر گیا تو خدیجہ کے در پر. کسی اور کی حسرت پوری نہ ہو سکے. کسی کی بھی یہ حسرت پوری نہیں ہوئی. دولہا بن کے گیا ہے
मेरा रसूल पूरी तारीख में एक ही मतलब तो दूल्हा बना है, दूल्हा बन के गया खदीजा के घर। अकाबरीन कुरैश बैठे हुए थे, बारात पहुंची, सुनना सुनना, रुके रहना, बारात पहुंची, इस्तकबाल किया गया, मोहम्मद बैठे, अबू तालिब बैठे, सारे खानदान वाले बैठे, और अब बैठ छिड़ गई कि खुतबा निकाह कौन पढ़े। एक मरतबा खदीजा वालों ने कहा कि अबू तालिब के होते हुए अबू तालिब के होते हुए किसी और की क्या मजाल कि मोहम्मद का खुतबा निकाह पढ़े। और अब तरगीबुल मुश्ताकीन में मोहम्मद इब्ने उमर इब्ने नबी बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं, किताब का नाम है तरगीबुल मुश्ताकीन, उन्होंने खुतबा निकाह अबू तालिब लिखा, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन नस्ल इब्राहीम व ज़रअ इस्माइल, हमद सल्लाह की जिसने हमें इस्माइल का बेटा बनाया। कौन कह रहा है? अबू तालिब। हमद सल्लाह की जिसने हमें इब्राहिम का बेटा बनाया, इस्माइल का बेटा बनाया। तो रसूल के सामने क्या कह रहे हैं अबू तालिब? हमद सल्लाह की जिसने हमें इब्राहिम का बेटा बनाया। भाई खुतबा निकाह पढ़ रहे हैं रसूल का, तारीफ अपनी कर रहे हैं। खुतबा निकाह है रसूल का, निकाह रसूल का हो रहा है, तारीफ अपनी कर रहे हो कि मुझे इब्राहिम ने बेटा बनाया। तो भाई कहने लगे कि मुझे तो मुसलमानों को कुरान की एक आयत की तरफ मुतवज्जह करना है। इब्राहिम ने दुआ की थी, अजीब गरीब दुआ की थी, वजनुबनी व बनिया और नाबुल असलाम, परवरदिगार मेरे बेटों को बुत परस्ती से महफूज रखना। परवरदिगार मेरे बेटों को, इब्राहिम की दुआ है कुरान में, परवरदिगार मेरे बेटों को बुत परस्ती से महफूज रखना। तो यह दुआ रद्द हो गई, यह दुआ कबूल हुई। तो अब इब्राहिम की दुआ तो रद्द नहीं हो सकती ना, इब्राहिम की दुआ तो बहरहाल कबूल होगी। तो अब इब्राहिम का बेटा वो, तवज्जो रहे, बेटा वो जो बुत परस्त ना हो, मोहम्मद के सामने का हमद उस खुदा की जिसने मुझे इब्राहिम का बेटा इब्राहिम का बेटा बनाया। तो अबू तालिब अपनी तारीफ क्यों कर रहे हो? तो बात यह है कि यह बैठा है वारिस शरीयत, यह बैठा है वारिस शरीयत, यह बैठा है साहिब किताब, इसके सामने कह रहा हूं कि मैं इब्राहिम का बेटा हूं। अगर गलत है तो यह इनकार कर दे, और अगर हूं तो मेरे पास शिर्क नहीं है, इस्लाम है। अच्छा, सुनते जाना, लेकिन जिंदगी के कुछ थोड़े ही से गोशे हैं जिनको चाह रहा हूं कि अपने सुनने वालों तक पहुंचा दूं। देखो अभी खदीजा और अबू तालिब के हवाले से गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, अभी तीसरा शब्द दाखिल नहीं हुआ। अच्छा, तो अबू तालिब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुतबा निकाह पढ़ाया, बल्कि निकाह पढ़ाया, अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। अब मैं फिर सवाल करूं कि परवरदिगार ईसा को भेज दे निकाह पढ़ाने के लिए। भाई स्टेटस चाहिए, निकाह खान के लिए स्टेटस चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का स्टेटस देख। तो ईसा तो जिंदा है और अंबिया जिंदा न सही, खिज़र जिंदा है, इलियास जिंदा है, ईसा जिंदा है। तो परवरदिगार इन्हीं में से किसी को भेज दे। अच्छा, इन्हें नहीं भेजता, फरिश्ते भेज दे, जिब्रील आ जाए निकाह पढ़ा दे, पैकरे बशरी में आए हैं जिब्रील। अच्छा, जिब्रील को नहीं भेजता, खुद पढ़ा दे, खुद पढ़ा दे। इसलिए कि तारीख में वाकया है कि अली का निकाह खुद पढ़ाया था। भाई याद है ना, ये तो सबने, मौलाना फिरोजुद्दीन रहमानी साहब और मौलाना मोहम्मद जफरुल कादरी साहब बड़े उलमाए किबार के अंदर शुमार होते हैं, और इन दोनों को गवाह बना रहा हूं कि रिवायत मुत्तफक अलैह है कि अली का निकाह फातिमा से आसमानों में हुआ और निकाह पढ़ाया अल्लाह ने। तो या नबी भेज मोहम्मद के निकाह के लिए, या फरिश्ता भेज मोहम्मद के निकाह के लिए। भाई तवज्जो रहे, या खुद पढ़ा दे, कहा नहीं, उससे पढ़वाऊंगा जो मेरी नुमाइंदगी में मोहम्मद की मदद कर रहा है। उससे अब जुमला सुनना, उससे पढ़वाऊंगा
जो मेरी नियाबत में, अल्लाह कह रहा है मेरी नियाबत में मोहम्मद की हिफाजत कर रहा है। भाई रुके रहना। तो परवरदिगार तूने मोहम्मद का निकाह अबू तालिब से पढ़वा दिया, ठीक है ना? तो परवरदिगार अली का निकाह मोहम्मद से पढ़वा दे, अली का निकाह मोहम्मद से पढ़वा दे। कहा नहीं, अबू तालिब का ये एहसान मुझ पर था, अबू तालिब का ये एहसान मुझ पर था, मुझ पर एहसान था कि उसने तेरा निकाह पढ़ा, तो जब तो सही कि उसके बेटे का निकाह मैं पढ़ूंगा, कोई और नहीं पढ़ेगा। देखो बहुत आहिस्ता मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब एक तीसरी शख्सियत भी आ गई, दरमियान में एक तीसरी शख्सियत भी आ गई। अबू तालिब के घर में क़याम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का क़याम अबू तालिब के घर में है। भाई सुनना, बरसों रहा, जो पका अबू तालिब के घर में वो खाया। जैद ने, तारीख में उठा के देख लेना, जैद ने भेड़ की एक भुनी हुई रान पैगंबर को हदिया की। पैगंबर ने कहा कि चूंकि ये मुशरिक के हाथ का ज़बिया है, ये रान मैं नहीं खाऊंगा। ये रान वापस कर दी तो नबी पर हराम है, तुम पर भी हराम है। मुशरिक का ज़बिया खाना जब तुम पर हराम है तो क्या नबी पे हराम नहीं होगा? तो अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि अबू तालिब के घर में गोश्त पकता था या नहीं, और मोहम्मद खाते थे या नहीं?